Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. This is compartment examination board paper ये 2025 का है for class 12th financial market management. So आपका पेपर जो आएगा बेटा राइट वो 60 मार्क्स का है राइट एंड 3 आवर्स का है. आप इस सब्जेक्ट को लाइट नहीं लेंगे कि ये स्किल एजुकेशन है तो सभी पास हो जाते हैं. आप पेपर को देख के ये इमेजिन कर सकते हैं कि काफ़ी बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी तो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट कराया था. इसलिए पेपर बोर्ड का पेपर अपेयर करने से पहले यू मस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चन पेपर्स thoroughly, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर. फर्स्ट सेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है. सेक्शन ए 30 मार्क्स का है. तो क्वेश्चन 1 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है जिसमें 6 में से आपको 4 करने हैं. हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. सो आइडेंटिफाई फर्स्ट पार्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस आरव गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर. तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हिज मदर. पार्ट 2 which factors contribute to personality development? It is temperament, character and environment. Third part, people with this personality disorder are extremely sensitive to criticism or disapproval. The answer is C part, histrionic. Fourth part, identify the odd one out based on the advantages of presentation software. So this is difficult to make changes. ये odd one out है, right? Fifth, perseverance is the ability to continue to do something even when it is difficult. Perseverance का मतलब क्या है? Never give up attitude. तो आप कोई भी चीज़ मुश्किल है लेकिन आप हार नहीं मान रहे. That is called as perseverance. Write the expanded form of UNEP. It is United Nations Environment Program. Now question number 2. 7 में से 5 आपको करने हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, राइट. सो फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंडेक्स इन फाइनेंशियल मार्केट? इंडेक्स का काम क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस मूवमेंट्स, राइट. तो बी इज द राइट आंसर. सेकेंड पार्ट, in a demutualized stock exchange, the roles of ownership, management, and trading are handled by 3 sets of people. Third part, what standard does NSE follow for trading and settlement? It is international standards. Okay. Fourth, which personal qualification are a part of NSE membership eligibility criteria? So the right answer is education and experience. Fifth, who is responsible for delivering securities and making payment to clients? It is trading member. ट्रेडिंग मेंबर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि सिक्योरिटीज डिलीवर करनी है, ठीक है, या पेमेंट्स करनी है क्लाइंट्स को, तो ये ट्रेडिंग मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी. द कोड ऑफ एडवर्टाइजिंग इंश्योर्स कंप्लायंस विद गाइडलाइंस सेट बाय विच एंटिटी? बाय सेबी. सेबी की फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट. देन सेवेंथ, सेबी रिक्वायर्स ब्रोकर टू मेंटेन अ कॉपी ऑफ पैन कार्ड फॉर ऑल क्लाइंट्स. क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं. 7 में से आपको 6 करने हैं और एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. ओके, व्हाट डज नीट सिस्टम यूज टू मैच ऑर्डर in its order driven market? It is time and price priority. What does OC signify in activity indicator of AL? It is order cancelled.
Okay, what does the buyback broadcast update? It update buyback information. Fourth, in which type of market can a user place order using the order entry screen? In the normal market. Who can modify orders of any dealer under their branch? तो इसका आंसर क्या होगा? You should know it is branch manager. Branch manager जो है, he can modify the orders. फोर्थ पार्ट पे आते हैं. What is the price at which a stop loss order gets triggered from the stop loss book? It is trigger price. Then what does DMA stand for in the context of co-location services? It is direct market access. Okay, answer 4 पे. What is the primary responsibility of NSCCL in the clearing and settlement process? Clearing and settlement of trades. ये primary responsibility है NSCCL की, right? What benefit does multilateral netting provide to a clearing members? ये 4 ऑप्शन है, तो right answer is reduce settlement risk. Then what potential exception may delay the completion of settlement? It is short deliveries, bad delivery और company objections. right? ये आपका जो है आंसर है. फोर्थ पार्ट पे आते हैं. Who conducts buying in auction for a non-rectified documents in case of company objections? So NSCCL. What is the purpose of buying in auction in security settlement? So buying in auction कब होता है? The purpose क्या है? To rectify shortages of securities. In settlement. Okay. Sixth part. In settlement system, what does counterparty risk primarily involve? Non-performance by counterparties. Now coming to question 5, यहाँ पे आपको 6 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं. हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, राइट? सो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. व्हाट डज द थर्ड कैरेक्टर ऑफ द ISIN represent according to NSDL's नंबरिंग सिस्टम? इशू डेट. आई आपको थर्ड इसका बताना है. Issue, sorry, it is not issue date. Let me rectify. Just a second. It is not issue date. It is issuer type. The right answer is issuer type, right? सेकेंड में आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखो पहले. 1200 आपका प्रिंसिपल है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5, टाइम इज 3, सो आपका हो जाएगा 15 into 12 इज 180. What does time value of money concept imply? इसका मतलब है कि अगर आप जो मनी आज इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी वर्थ ज्यादा है, टुडे इट इज मोर एज कंपेयर टू सेम अमाउंट इन द फ्यूचर, राइट? What does EPS measure? EPS measure profit available to equity shareholders per share. Now, what is the primary purpose of P&L account? Primary purpose है to report the financial performance of a company. Okay, so according to accounting convention, which assets are assumed to have a fixed life? So the answer is fixed assets except land.
नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे 6 में से 5 करने हैं आपको, और यहाँ पे भी हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। द शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज एंड शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड are the two largest exchange of any kind in the world today. So answer is derivative exchange. So which type of contract has higher counterparty risk? Forward contracts. So the right answer is forward contracts. थर्ड पार्ट पे आते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर इन्वेस्टर who buys a future contract? Long position. Fourth, beta provides insight into stocks volatility. Fifth part, which type of risk affect only a specific company or industry rather than the entire market? So it is unsystematic risk. What are index options settled with cash settlement? सेक्शन बी, इसमें 30 मार्क्स का है, और ये जो 7 to 11 आपको दिख रहे हैं क्वेश्चंस, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से हैं, जो आपको 5 में से 3 करने हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सो राइट द स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। इट इज रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, then evaluating, responding, then question 8, what is emotional and impulsive personal disorder? सो ये जो डिसऑर्डर है, इट इज करेक्टराइज बाय अनस्टेबल मूड्स होते हैं, यहाँ पे अनस्टेबल बिहेवियर होता है, अनस्टेबल मूड एंड बिहेवियर्स। ठीक है। सो इट लीड टू अनहेल्दी रिलेशनशिप्स एंड फीलिंग ऑफ what you can say worthlessness. Question number 8 we are done. 9, write the difference between worksheet और workbook. Worksheet क्या है? Worksheet collection of cells in the form of grid. So collection of cells. और workbook क्या है? It is the spreadsheet that has one or more worksheet. Right? Now 10th, who are service entrepreneur? सर्विस एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो क्रिएट करते हैं न्यू मार्केट फॉर देयर सर्विसेज, एंड दे प्रोवाइड और दे कैन प्रोवाइड अ सर्विसेज इन एन एग्जिस्टिंग मार्केट। दे व्हाट दे डू बेसिकली, ये आइडिया स्पॉट करते हैं और उस आइडिया को कन्वर्ट करते हैं सर्विस में, राइट? सो दे बेसिकली क्रिएट अ न्यू मार्केट फॉर सर्विसेज, या जो एग्जिस्टिंग मार्केट होती है उसमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। Question 11. Excessive. How can human activities like excessive deforestation impact ecosystem? Excessive deforestation होगा तो ecosystem disrupt हो जाएगा, climate change, natural disasters, ये सब जो है इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि जो survival है species का, it will be in danger. Now, after this, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ 5 में से 3 करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन 12, व्हाट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द मार्केट क्लोजिंग सेशन? जब भी मार्केट क्लोजिंग होती है, सो ट्रेडिंग जो है सभी इंस्ट्रूमेंट में फॉर दैट मार्केट ऑल्सो कम्स टू एन एंड। कोई नया ऑर्डर जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हाउएवर जो यूजर्स हैं, दे कैन परफॉर्म एक्टिविटीज, जैसे दे कैन डू इंक्वायरीज या ट्रेड कैंसिलेशन, बट कोई नया ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होता है। Question 13, what do you understand by settlement guarantee mechanism of the exchange? So ये जो settlement guarantee fund है, ये क्या करता है? It provide the cushion
फॉर एनी रेजिडुअल रिस्क। तो कोई भी फेलियर होता है, अगर ट्रेडिंग मेंबर जो है वो कोई अपनी ऑब्लिगेशन सेटल नहीं कर पाता है या कोई डिफॉल्ट कमिट करता है, तो ये जो सेटलमेंट गारंटी फंड होता है इसको यूज किया जाता है फॉर कंप्लीशन ऑफ द सेटलमेंट, राइट। नाउ what is the role of mortgage in secured loans? ठीक है, मॉर्टगेज को कोलैटरल भी बोलते हैं। देखिए, कई बार लेंडर जो है वो क्या करता है, जब भी फंड्स देता है, ठीक है, तो बोरोअर अपनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, ये मॉर्टगेज गिरवी रखवा देता है लेंडर के पास कि इन केस अगर बोरोअर पैसा नहीं दे पाता तो लेंडर उस प्रॉपर्टी को सेल करके जो भी फंड्स उसने बोरोअर को दिए थे वो प्रॉपर्टी बेच के उसको मिल जाएंगे। नाउ व्हाट इज मेंट बाय डेरिवेटिव, क्वेश्चन नंबर 15। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू डिराइव की जाती है फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ठीक है, ये आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन 16, व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, ये इसे मार्केट रिस्क भी बोलते हैं बेटा, और इसे डाइवर्सिफिएबल रिस्क भी बोलते हैं, राइट। ये वो रिस्क है जो इनहेरेंट होता है पूरी मार्केट में एंड इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इट इज कॉज्ड बाय फैक्टर्स जो एक्सटर्नल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 17 टू 19 में आपको 2 ही करने हैं आउट ऑफ 3, और यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है। स्टेट एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सपल्शन। तो ऑफिस जो एक्सपल्शन है, इट वुड क्रिएट अ वैकेंसी इन दी ऑफिस, तो ऑफिस विकेट हो जाता है, राइट। और देन ट्रेडिंग मेंबर्स जो हैं, दे कैन नॉट डील विद द एक्सपेल्ड ट्रेडिंग मेंबर्स, राइट। और अगर कोई भी पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो ट्रेडिंग मेंबर में, अगर जब जिस समय उसको एक्सपेल किया गया है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पेंडिंग है तो ही हैज टू फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो राइट्स ऑफ क्रेडिटर्स आल्सो unimpaired। एक्सपेल्शन जो है इट डज नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर्स हु आर क्रेडिटर्स ऑफ द एक्सपेल्ड ट्रेडिंग मेंबर्स। तो ये आपको कुछ चीजें हम अभी डिटेल में जो चैप्टर्स हैं उसमें यू विल सी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द स्पेशल फीचर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑर्डर। सो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर का क्या है कि जो यूजर है, he can modify the orders, he can cancel the orders, he can view the status of a particular order। तो modify कर सकता है, cancel कर सकता है, he can view the status from the outstanding order screen। Now coming to question number 19, how did Depository Act 1996 address the limitations of paper based settlement in India? राइट, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 जो है ये पेपर बेस्ड से काफ़ी ट्रांजिशन था। पहले सिर्फ पेपर बेस्ड जो था वो ट्रेडिंग सिस्टम होता था, लेकिन अब डिपॉजिटरी सिस्टम जो है वो आ गया है, और इसमें क्या है, सिक्योरिटीज जो हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होती हैं विद स्पीड एक्यूरेसी, राइट। सो सिक्योरिटीज जो है दे आर डीमेटेरियलाइज थ्रू डिपॉजिटरीज, और जो एवरीथिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली, eliminating the need for physical movement of securities। ये आपको लिखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 से 24 आपको 5 में से 3 करने हैं, और हर क्वेश्चन जो है यहाँ पे 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन 20, व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग इन द होलसेल डेट मार्केट एंड करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। सो होलसेल डेट मार्केट जो है, कब ऑपरेशन इसके स्टार्ट हुए थे, जून 1994 में, right? Or it provide the trading platform for wide range of debt,
तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा ये सब इंक्लूड होते हैं। लेकिन करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट ये इसने कब ऑपरेशन स्टार्ट किए थे? 29 अगस्त 2008। 2008 पे and with the launch of the currency future trading in US डॉलर इंडियन रुपी। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। आपको दो एक्सप्लेन करने हैं, नॉर्मल मार्केट ओपन फेज, पोस्ट क्लोज मार्केट। या सर कौन? द फर्स्ट वन इज नॉर्मल मार्केट ओपन फेज। सो ये ओपन पीरियड इंडिकेट क्या करता है? कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। अभी मैं फर्स्ट वाला बता रही हूँ, दिस वन। ठीक है। सो जब भी टू सिग्निफाई द स्टार्ट ऑफ ट्रेडिंग एक मैसेज सभी ट्रेडर को भेज दिया जाता है। जो मार्केट है मार्केट ओपन टाइम फॉर डिफरेंट मार्केट नोटिफाई की जाती है एक्सचेंज से सभी ट्रेडिंग मेंबर्स को। राइट। ऑर्डर एंट्री अलाउ की जाती है जब सारी सिक्योरिटीज ओपन हो जाती है। सो ड्यूरिंग दिस फेज ऑर्डर्स जो हैं वो मैच किए जाते हैं ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। नाउ व्हाट इज पोस्ट क्लोज मार्केट? पोस्ट क्लोज मार्केट में क्लोजिंग सेशन इज अवेलेबल ओनली इन नॉर्मल मार्केट सेगमेंट। यहाँ पे जो टाइमिंग्स होते हैं ये होते हैं 3:40 PM से 4 PM। मैं लिख देती हूँ। राइट। सो मार्केट ओनली मार्केट प्राइस ऑर्डर्स आर अलाउड और स्पेशल टर्म्स, स्टॉप लॉस, डिस्क्लोज क्वांटिटी ऑर्डर्स, इंडेक्स ऑर्डर्स ये अलाउ नहीं होते। सो ट्रेड्स आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल मार्केट ट्रेड। सिक्योरिटीज जो है not traded in the normal market session are not allowed to participate in the closing session. Now third part, so surveillance under control इसका मतलब है, इसकी फुल फॉर्म है सर्विलेंस एंड कंट्रोल। ये वो पीरियड है आफ्टर मार्केट क्लोज ड्यूरिंग विच यूजर्स जो हैं वो दे हैव इंक्वायरी एक्सेस होंगी। ठीक है। जब ये सर्विलेंस एंड कंट्रोल पीरियड ओवर हो जाता है, आफ्टर द एंड ऑफ दिस पीरियड सिस्टम प्रोसेस करता है डेटा फॉर मेकिंग द सिस्टम अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, 4 functions of clearing banks. So 4 functions में आप लिख सकते हैं कि प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल फंड्स। ठीक है। सर्विसेज जैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ये भी प्रोवाइड की जाती हैं। देन अदर कैपिटल मार्केट रिलेटेड फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड। देन वैल्यू एडेड सर्विसेज टू द मेंबर्स आर प्रोवाइडेड जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट फंड ट्रांसफर एक्सेट्रा। Another thing you can write down कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 हो गया हमारा। 23, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन फाइनेंशियल मार्केट, ऑल्सो एक्सप्लेन की फीचर एंड द रिस्क इन्वॉल्व। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो बायलेटरल एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में वेयर दे एग्री टू बाय और सेल कोई भी एसेट at a specified future date and price। ठीक है। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं कस्टमाइज्ड होते हैं, राइट, टू मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। सो ये कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज। तो इसलिए इट विच अलाउ फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है लेकिन इट एक्सपोज देम टू काउंटर पार्टी रिस्क। तो काउंटर पार्टी रिस्क होता है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फ्यूचर पे ऑफ? एक्सप्लेन। फ्यूचर पे ऑफ का मतलब है प्रॉफिट और लॉस दैट एन इन्वेस्टर रियलाइज फ्रॉम होल्डिंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सो कोई भी प्रॉफिट और लॉस जो इन्वेस्टर रियलाइज करता है अगर उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को तब तक होल्ड किया है जब तक वो सेटल नहीं हो जाता। राइट।
इसमें आपको डिटेल में वीडियो में आप देख लोगे कि लॉन्ग फ्यूचर पे ऑफ के बारे में लिखना है कि लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ द एसेट टू राइज. So this all you have to explain here, right? ये with this our paper is over. In the next video I will be coming up with one sample paper which is prescribed by the CBSE. Thank you for watching the video.